Hello dear students, today I am going to discuss about a beautiful chapter and the name of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together from your Hornbill book. This is a chapter about the determination, optimism and sheer courage of somebody else in unfavorable condition of weather also. How the people can overcome all these difficulties. This is a story and vivid example of that. इसका एक जीता जागता मिसाल है ये story. Okay, so who are the characters? Let me see and let you also spot out. So narrator, 37-year-old man. His wife Mary, M-A-R-Y. Jonathan, his son, 6 years of age, only 6 years of age, who has told this remark, we are not afraid to die if we all can be together. Who is the speaker of this line? Jonathan. Okay, a 6 years age boy only. And his daughter Suzanne, 7 years of age. Okay, these are the four main characters. Along with that, two more people were there who were driving this car, driving this ship, or who were driving the ship. They are called crewmen. They are the crewmen of this story. So, who are the crewmen? First of all, Larry Weasel. Okay, and Herb Sizzler, S-E-I-Z-L-E-R, and Larry Weasel. They are the crewmen, who were driving the boat. Okay, got it? Then, what was their purpose? Their purpose was to duplicate the journey और voyage, सी जर्नी को इंग्लिश में कहते हैं voyage of Captain James Cook. 200 years back, Captain James Cook had already crossed a long distance of sea. They wanted to duplicate, means follow this journey. They wanted to make everyone proud with their activity. Made a boat. They have made a boat. So for this purpose, they have made a boat. The name of the boat is Wave Walker. What they have made? Wave Walker, a boat they have made. उन्होंने एक बोट बनाया था जिसका नाम था Wave Walker. It was strongly built. ये बहुत strongly बनाया गया था. And they were having a determination that this boat cannot cheat them, and they will complete their journey with this boat. Okay. Now, after that, this part is completed. So now I have divided in such a way that importance. Okay. Yeah, important incident and their victory. Okay. How they were टेकिंग अ विक्ट्री, कैसे वो लोग इस प्रतिकूल कंडीशन में भी जीत गए, उसकी कहानी कैसे जीते देखो. दे डिसाइडेड टू क्रॉस अ लॉन्ग जर्नी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे क्रॉस 1,05,000 किलोमीटर. दे कवर्ड स्मूथली. जब वो समुद्री यात्रा पे निकले तो 1,05,000 किलोमीटर बहुत अच्छे से उन्होंने जर्नी कर लिया था. एट द डॉन ऑफ, उन्होंने अपना क्रिसमस 25 दिसंबर, पहले ये बता दूँ उनकी जर्नी जो है वो शुरू हुई थी जुलाई के महीने में. इन जुलाई 1976 फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड उन्होंने अपना जर्नी शुरू किया था और 1,05,000 किलोमीटर तक के डिस्टेंस उन्होंने पूरा कर लिया था. देन ऑब्वियसली एट द डॉन ऑफ जनवरी 2 मीन्स 1 जनवरी एंड न्यू ईयर एंड क्रिसमस बोथ दे हैव स्पेंड देयर. उन्होंने वहाँ पे स्पेंड किया था. ओके, तो ऑन ऑफ जनवरी 2 द वेव्स वेर जाइगेंटिक, GIGANTIC. समुंदर में उथल पुथल हमेशा रहते हैं, तुम लोग जानते हो. पर जनवरी 2 को, 2 जनवरी को, द वेव्स वेर कमिंग एट अ हाई स्पीड. जो लहरें हैं बहुत तेज़ होने लगे. अबाउट 15 मीटर ऑफ हाइट, 15 मीटर तक की हाइट उन लहरों की होने लगी थी. एंड दे वर अफ्रेड. वैसे ही जाइगेंटिक मतलब ह्यूज, वेरी लार्ज. ओके, द वेव्स ऑफ जाइगेंटिक वेव्स. जनवरी 2 वक्त कौन सा था? जनवरी 2 at about 6 p.m. all the details are given. कितने बजे? 6 p.m. a huge wave struck at their ship. एक बहुत बड़ा सा जो है लहर, एक बहुत लंबी सी लहर. It was a huge wave that struck at their ship. उनके शिप के ऊपर बिल्कुल टूट पड़ा. From the back side itself. Ship was हार्ट बैडली. उनकी शिप को बहुत बुरी तरीके से चोट लगा और पीछे से वो लहर आके टक्कर मारने के लिए शिप ऐसे हो गए. ओके, डायग्नोस्टिकली शिप वॉज डायग्नोकल. ओके, हार्ट बैडली. ऑल द थिंग्स स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. जितने भी शिप को जोर से वो लहर धक्का मारने से शिप जब सामने की तरफ डूबने लगा, इट स्टार्टेड सिंकिंग. ओके, एट द टाइम ऑल द थिंग्स स्टार्टेड ब्रेकिंग. वो सारी चीज़ जो है वो टूटने लगी थी. एंड दे स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन वाटर. वो पानी में तैरने लगे थे. इवन एवरीथिंग, द क्रॉकरीज, जितने भी बर्तन थे, द क्रॉकरीज, द फर्नीचर, द वुडन थिंग्स, एवरीथिंग स्टार्टेड स्लाउचिंग ऑन द वाटर, स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द वाटर. नैरेटर्स, लेफ्ट रिब वॉज ब्रोकन. नैरेटर के बाएं तरफ की सीने की हड्डी, दैट इज कॉल्ड रिब, इट वॉज ऑलरेडी ब्रोकन. इवन टिथ ऑल्सो, उनके टिथ टूटने लगे थे और उनके मुंह से ब्लड जो है वो निकलने लगा था. ओके, हिज टिथ were filled up with the blood. His mouth was filled up with the blood as the teeth were broken. देखो कंडीशन, उनके टिथ टूट गए थे,
रीढ़ सीने की हड्डी टूट गई थी, फिर भी वो लड़ रहे थे, फिर भी वो यहाँ से वहाँ जाके स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश कर रही थी. डॉटर गॉट अ सीवियर, उनकी जो बेटी है सुजान, शी वॉज गेटिंग अ सीवियर इंजरी, बम्प ओवर द आइज, उसकी आंखों के ऊपर जोर से टक्कर लगने से ये बम्प बिल्कुल आइज के ऊपर जो है उसका बिल्कुल स्वेलिंग हो गया था, बम्प हो गया था, मतलब बिल्कुल फूल गया था. ठीक है, बम्प ओवर द आइज. लेटर शी हैड गॉन अंडर 6 माइनर ऑपरेशन. जानते हो इसका अंजाम क्या हुआ? दैट गर्ल डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड, उस लड़की ने एक भी शब्द उच्चारण नहीं किए. इवन शी अंडरस्टूड कि दिस वॉज अ वेरी हार्ड टाइम, सो शी डिड नॉट अटर हर पेन इन फ्रंट ऑफ हर फादर ऑल्सो. अपने पापा को भी उन्होंने अपना दर्द नहीं बताया उस लड़की ने. बाद में जब सब कुछ ठीक हो गया, उस लड़की को 6 ऑपरेशन से गुजरना पड़ा था. शी हैड गॉन अंडर 6 माइनर ऑपरेशन. सोचो. And definitely I told that boy, only 6 years of age boy, Jonathan, he has remarked the word, Father, we are not afraid to die. हम मरने से घबराते नहीं हैं. If we are all together, अगर हम सब लोग साथ हैं तो. What a courage this boy is having. Entire family is having a tremendous courage. Okay? The bump over our eyes, उसकी आंखों में फूल गए थे, 6 ऑपरेशन हुआ. Larry and Herb, दिस क्रूमैन, वो जो चालक है, वो जो ड्राइवर है शिप के, दिस क्रूमैन, दे वर हैविंग अ ट्रिमेंडस एफर्ट, दे वर हैविंग एक्सट्रीमली प्रोपेल टू एंड होल्ड ऑफ ऑल दिस स्टीयरिंग. दे नेवर लेफ्ट दिस स्टीयरिंग, उन्होंने स्टीयरिंग छोड़ा नहीं. एंड अल्टीमेटली नैरेटर फाउंड, नैरेटर ने क्या पाया? नैरेटर फाउंड स्पेयर कॉम्पस. नैरेटर ने एक स्पेयर कॉम्पस फाइंड आउट किया. ही कैलकुलेटेड द डायरेक्शन एंड ही फाउंड आउट दैट नियर बाई, आसपास में, देयर इज़ एन आइलैंड, एक आइलैंड है जिसका नाम है ओके इल एम्स्टर्डम. ILE इल एम्स्टर्डम, इट इज़ रिटन ILE इल एम्स्टर्डम, AMSTERDAM. इल एम्स्टर्डम नामक इतने टूटे फूटे शिप के साथ वो अपना जर्नी कंप्लीट तो नहीं कर सकते. पास में एक छोटे से आइलैंड में जाके उन्हें सहारा लेना पड़ेगा. तो नैरेटर ने अपने कंपास के जरिए डायरेक्शन फाइंड आउट करके इल एम्स्टर्डम नामक एक छोटा सा आइलैंड उन्होंने ढूंढ लिया था. उस आइलैंड में 28 रेसिडेंट्स ओनली रहते हैं. ठीक है, तो नैरेटर विद दिस रेकेज ऑफ शिप, इस टूटे फूटे शिप के साथ ही नैरेटर ने विद द शेयर डिटर्मिनेशन, उनका डिटर्मिनेशन बहुत था नैरेटर का कि वी विल ओवरकम दिस हार्डशिप, हम लोग इस मुसीबत से दोबारा छुटकारा पाएंगे, ये सोच के वो चल पड़े. और उन्होंने कहाँ कदम रखा? द रिच टू इल एम्स्टर्डम. इल एम्स्टर्डम पे उन्होंने कदम रखा. दैट वाज अ स्मॉल आइलैंड, एक छोटा सा आइलैंड था. वे 28 रेसिडेंट्स वेर देयर, जहाँ पे 28 रेसिडेंट्स हुआ करते थे, खाली 28 लोग वहाँ रहते थे. दे ऑल चीयर्ड देम, इन सब लोगों ने उनकी तारीफ की. cheered them for their indomitable spirit. A good word I have written, that is called indomitable spirit. अदम्य उत्साह, जिस उत्साह की कभी तुम फिनिश नहीं कर सकते. They were having an indomitable spirit. So all the people, they were over just welcoming them just for their extreme courage. So in this way you have seen that we have finished a beautiful story. That story gave you a message. What is the message? That optimism, डिटर्मिनेशन कैन नॉट लेफ्ट एनी मोर, कभी छोड़ा नहीं जाना चाहिए. इफ़ यू आर हैविंग दिस 2 things with you, they are the biggest weapon. They will help you in every way of life.